welcome you all again, and you know that you all are studying very well and nice. I hope so, because you all are in 10th and you are so mature now. Okay, guys. So see, we have started fourth chapter of your supplementary in the last lecture or previous lecture. The name of the chapter is A Question of Trust. It is written by Victor Canning. And what is the story? Let's revise it once again. Here, one man, his name is Horace Danby. He is a good and honest citizen, and he is nearly about 50 years old. And he has a profession, or he was doing the job of making the locks and safe and selling them. In the society or in that town, he was known as an honest citizen. But really he is? No. Because of his weird hobby. He has a hobby. That what the hobby he is having? He has a hobby of, we can say that, purchasing rare and expensive books. Because he has a hobby of reading. And he used to read that all the books there. And with that, as he was not earning much by selling the locks, that is why he started, or he was doing some other job. What does it? It is the job of robbing the houses. That once in a year he used to rob one house, and whatever he is getting in that, this money or jewelry, whatever it is, sufficient for 1 year to him. So from last few years his work is going on like that. He was purchasing the heavy and expensive books. Okay, he was reading that books also. And how he was reading, how he getting the money, and he is getting the money by robbing the house. So he decided to rob Mrs. Grange's house, and for that purpose he studied the house of Mrs. Grange of nearly 2 weeks. And from that he studied all the things, that where is the drawing room, kitchen and bedroom, and where is the safe especially. And he also knew that the 2 servants were there, they are taking care of the house. So he studied from the magazine, we can say, and in that magazine he studied about all the main, we can say that, things of Mrs. Grange's house. So, and he got the information that on that day the 2 servants, that whoever were taking care of the house of Mrs. Grange, they were went for watching the movie. So this is enough time for him to rob the house. So on that day he went inside the house, and how make the entry in that house, he also know that. He just entered from the wall side, back side of the garden. He took off the key, and there the dog was seated. The dog name was Sherry, and that is why he called the name of the dog, and he talked with the dog very in a loving manner. And that is why the dog was pleased, and he entered in the house. Whenever he entered in the house, there was a pot of the flowers, vase of the flowers, and he is having a hay fever, especially in the month of summer, in the season of summer. But this is, as soon as he was getting near the flowers, he was having the sneezing problem. So he started sneezing there. But in the house, the Mrs. Grange had set the alarm. As soon as the sound came, the alarm just rang out, and he may be caught by others or the police. That is why he sneezed very calmly. Then after, first work he had done is that he just cut the wire of the alarm that was in the hall. So he went in the hall, or he cut that wire, and then he started sneezing loudly, because no alarm will going to ring then. Okay. Then what happened? Whenever he started his work, again he was getting sneeze. उसको फिर से छींके आने लगी. Why? Because their flowers are kept there, and those flowers, because of the smell or fragrance of the flower, makes him sneeze. उसका जो खुशबू flowers की थी, उसकी वजह से उसको छींके आ रही. So he decided that it is not possible for me, as I am getting the sneezing much. That is why he just buried the handkerchief over his face. उसने उसके मुंह को अंदर बंद करके handkerchief बांध लिया, and he started his works. As soon as he started, or he had going to open the tools, at that time one lady's voice he heard, and that lady was saying to him that if you want to make the treatment of yours, then you just go to the doctor. Why are you come here?
कि तू यहाँ पे क्यों आया है, यू वॉन्ट द ट्रीटमेंट एंड यू गो टू द डॉक्टर, तो तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए. एंड द लेडी फर्दर आस्क्ड हिम दैट व्हाट द वर्क यू आर हैविंग दैट यू आर हियर. सो ही सेड दैट ही इज हैविंग हे फीवर. उसने बोल दिया क्योंकि उसको स्नीजिंग बहुत हो रही थी, तो उसने बोला कि आई एम हैविंग द हे फीवर, आई हैव द एलर्जी फ्रॉम द प्लांट्स. उसको प्लांट से एलर्जी होती है, जैसे ही वो प्लांट्स के पास जाए उसको छींके स्टार्ट हो जाती थी. तो वो लेडी उसके पास आई. द लेडी वॉज केम नियर टू हिम एंड ही एड्रेस्ड द हॉरेस. उसने हॉरेस को पूछा. क्या पूछा देखो, वो बोलती है कि मेनी पीपल आर सपोजिंग दैट आई एम आउटसाइड द हाउस और आई एम इन लंडन, बट आई एम इन माई हाउस ओनली. फ्यू डेज अगो आई कम हियर एंड आई इन फ्रंट ऑफ मी अ बर्गलर वॉज स्टूड. वो बोलती है कि कैसी हिम्मत है लोगों की, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ये घर से बाहर हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरे सामने एक बर्गलर है. तो होरेस सेड टू हर, होरेस ने उसको बोला कि इन माई फर्स्ट थॉट होरेस थॉट दैट यू हैव टू टेक द रन फ्रॉम देयर, तो वहाँ से उसको भाग जाना चाहिए. बट वो वहाँ से नहीं भागा. वो लेडी उसको क्या बोलती है, यस यू कैन, कि तुझे भागना है तो तू भाग जा, बट मैं पुलिस को कॉल करूँगी और पुलिस तुझे खुद क्या बोलते कैच कर लेंगे. यहाँ तक हमने फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर कंप्लीट किया था. अभी स्टोरी के आगे बढ़ते हैं. आर यू गेटिंग? ओके. होरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन ही हेजिटेटेड अ स्माइल ऑन हिज फेस. आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ. होरेस ने उसको बोला कि मैंने गलती कर दी. मैंने जैसे ही वो अलार्म के वायर्स कट किए वैसे मैंने टेलीफोन्स के भी जो वायर से वो कट करने चाहिए थे उसको वो डर रहा था, पर उसके फेस पे स्माइल थी और बाद में उसको ऐसा लगा कि मैंने ये काम अच्छा नहीं किया, मुझे टेलीफोन के वायर्स भी तोड़ने चाहिए थे, मेरे पास काफ़ी समय था. सो शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी. वो जो लेडी थी वो उसको एकदम सीरियसनेस से देख रही थी और उसको बोलती है कि यू हर्ट मी, यानी तुमने मुझे क्या बोलते हैं उसको, मीन्स यू जस्ट डिसप्लीज्ड मी, कि मुझे तूने दुख पहुंचाया है. होरेस पॉज्ड एंड देन सेड आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट. होरेस ने उसको बोला कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने आपको उस तरह से बात की. यू डिडंट फ्राइटन मी. वो बोल रहा है कि तू मुझे डरा ही नहीं सकता, तू मुझे डरा नहीं रहा था. होरेस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो. होरेस उसको बोलता है कि एक काम कर, तू मुझे जाने दे यहाँ से और उसके बाद जो भी है, तू ऐसे कभी मुझे देखा ही नहीं, इस तरह से जस्ट सपोज टू टेक द डिसीजन कि तू ये डिसीजन ले ले, तूने कभी मुझे मिली ही नहीं थी, इसलिए मुझे जाने दे. द वॉइस वॉज सडनली शार्प. वाई शुड आई, यू वर गोइंग टू रॉब मी, इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू. वो बोलती है कि द वॉइस वॉज सडनली शार्प. उसकी वॉल्यूम जो है वो अचानक से बढ़ जाती है. वो उसको बोलती है कि क्यों, मुझे क्यों डरा नहीं रहा था तू, और मैं तुझे जाने के लिए, क्योंकि तू अगर यहाँ से चला गया तो तू दूसरे घर में चोरी करेगा. एंड एज अ सिटीजन, एज अ ऑनरेबल सिटीजन एंड रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई वुड हैव टू सेव, आई वुड हैव टू पनिश यू, कि मुझे तुझे पनिश करना चाहिए ताकि अदर्स वर बी रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम यू, कि दूसरे जो है लोग उससे बचे रहे, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग यहाँ से अगर मैंने तुझे जाने दिया तो डेफिनेटली यू विल रॉब द अदर वन, कि तू दूसरे किसी को रॉब करेगा, इसलिए मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी नहीं, जो भी तुझे करना है बोल. होरेस स्माइल्ड. आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई स्टील फॉर अ गुड रीजन एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन. होरेस ने स्माइल किया और वो बोलता है कि नो नो नो, आई एम नॉट थ्रेटनिंग द सोसाइटी. मैं किसी भी समाज को मैं डराता नहीं हूँ, और मैं चोरी भी करता हूँ तो सिर्फ उन्हीं के घर पे करता हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, अदरवाइज मैं कभी भी चोरी करता नहीं हूँ. और आई एम डूइंग द रॉबरी फॉर अ गुड पर्पज, गुड रीज़न, उसके लिए कुछ एक अच्छी चीज़ है जिसके लिए मैं रॉबरी करता हूँ. क्या चीज़ थी वो रॉबरी के जो भी पैसे होते थे उससे वो क्या लेता था, बुक्स खरीदता था, है ना. और उसको वो उसे बताता भी है कि मुझे ऐसे प्रिजन में जाने का थॉट नहीं है, मैंने कभी भी जेल में जाने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ और उन्हीं के घर से चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं. यस, ऐसा वो बोल रहा है. फिर देखो, शी laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let
मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। अभी वो लेडी इतनी कंफर्म थी, देखो शी वॉज वेरी फर्म कि वो कितनी बोल्ड थी एक्चुअली। वो हंसती है, ये उसकी माफ़ी मांगता है कि मुझे जाने दे प्लीज़। वो काफ़ी कोशिश करता है, परस्यूडेड का मीनिंग होता है मनाना, उसको मनाने की काफ़ी कोशिश करता है, बट कुछ वो फ्रूटफुल नहीं होता है। वो बोलते हैं कि तूने मुझे डेस्परेट कर दिया, मुझे तू यहाँ से जाने दे। वो उसको बोल रहा है, कौन? हॉरेस इज सेइंग टू, हॉरेस इज बेगिंग टू दैट लेडी। वो लेडी के सामने बोल रहा है मुझे जाने दे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये इसके बाद कभी भी मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। रियली आई एम सेइंग दिस, कि मैं सच में ऐसा बोल रहा हूँ कि कभी भी मैं ऐसा काम करूँगा नहीं, बट बस यहाँ से मुझे तू जाने दे। शी वॉज साइलेंट watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" वो चुप हो गई, उसके पास में गई, उसकी ओर क्लोज उसके आईज में देखने लगी और उसको बोलते कि यस, तू तो डर गया, तुझे प्रिजन का डर लगता है ना, तुझे जेल में जाने से डर लगता है ना। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। वो उसके पास में जाके उसके हेड को ऐसे शेकिंग करके बोल रही है कि मुझे तो ऐसे रॉन्ग लोग बहुत अच्छे लगते हैं, चोर हैं, रॉबरी करने वाले जो बर्गलर्स हैं, ऐसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं। वो उसके सामने जाके ऐसा बोल रही है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टूक अ सिगरेट फ्रॉम इट। उसने एक सिल्वर कलर का बॉक्स था जिसके अंदर शी यूज टू कीप द सिगरेट्स इन दैट, उसके अंदर वो सिगार्स रखती थी, उसने उसमें से एक सिगरेट ली। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम took off his gloves and gave her his cigarette lighter. उसने क्या किया देखो, वो सिगरेट निकाली सिल्वर बॉक्स में से। हॉरेस जो था उसको प्लीज करने की कोशिश कर रहा था कि शायद मैं किसी तरह से ये लेडी को मना लूँ और यहाँ से मैं निकल जाऊँ, बट उसके लिए वो पॉसिबल ही नहीं था। वो लेडी ने उसके ग्लव्स निकाले खुद के, और उसके ग्लव्स निकालने में तो सिगार और लाइटर जो है वो हॉरेस के हाथ में देते हुए क्या बोलती है देखो, यू विल लेट मी गो। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। वो बोलता है कि हॉरेस फिर से उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। बोल रही कि हाँ मैं जाने दूंगी, बट मेरा एक काम तुझे करना होगा। वो ऐसी एक कंडीशन हॉरेस के सामने रखती है, एनीथिंग यू से। तो हॉरेस बोलता है कि यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, एनीथिंग यू से। वो बोलती है कि कंडीशन रखती है उसके सामने कि यस आई वुड अलो टू गो यू, तो मैं तुझे जाने तो दूंगी, बट मेरे लिए काम करना होगा। तो हॉरेस उसको बोलता है ओके जो आप बोलो, मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स इन आवर बैंक, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू द पार्टी टू नाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट हॉरेस स्माइल। बट इतना ही बोलती है। वो उसे बता रहे देखो कि जब हम लोग लंदन जा रहे थे तो मैंने मेरे हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मीन्स आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड, ये जो ज्वेल्स है, जो भी ज्वेलरी है, मुझे बैंक में रखना है, और पर अभी मैं यहाँ पे आने वाली आई हूँ तो मुझे आज की पार्टी के लिए ये सेफ में से वो जो ज्वेलरी है वो निकालनी है। बट वो कुछ बोलने जाए इससे पहले देखो हॉरेस स्माइल, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू। उसके बीच में ही वो बोल देता है कि हाँ, फिर सेफ के जो नंबर्स होते हैं देखो, वो लोग नंबर सेट करके रखते हैं, उसके बगैर वो लॉक खुलता नहीं है। तो उसने बोला कि हाँ तूने नंबर सेट करके रखे हैं, वो तो भूल गई है ना, ऐसा वो उसको हंसते हंसते बोलता है। उसको तो फायदा मिल गया क्योंकि वो लेडी को क्या बोलना है वो समझ में नहीं आ रहा था। वो जो बोलने वाली थी उससे पहले तो हॉरेस ने डर के मारे बोल दिया। फिर क्या होता है देखो, यस रिप्लाइड द यंग लेडी, बोलते हैं कि हाँ सेम ईयर, वही प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था कि ये ज्वेलरी मैं बैंक में रख दूंगी और इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और आज रात के लिए मुझे वो ज्वेलरी पहननी है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो लॉक के जो सेफ के नंबर से जो भी कोड है वो मैं भूल गई हूँ। तो अभी क्या बोलता है देखो, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। वो बोलता है कि ओके। हॉरेस बोलता है मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको 1 घंटे में ये सेफ खोल दूंगा, बट मुझे आपका सेफ जो है वो तोड़ना पड़ेगा। फिर क्या होता है देखो, डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय दैट टाइम। वो बोलती कि कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड 1 महीने तक यहाँ पे नहीं है, उसके बीच में ये जो सेफ है उसको मैं रिपेयर करवा लूँगी, तुझे तोड़ना है तो तोड़ दे, पर मुझे तू कुछ भी करके ये जो मेरी ज्वेलरी है वो बाहर निकाल के दे दे। इस तरह से वो किसको बोल रही है, हॉरेस को बोल रही है। फिर क्या होता है देखो, एंड रिटर्न विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ
गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। फिर देखो 1 घंटे के अंदर होरेस हैज ओपन द सेफ। होरेस ने वो जो सेफ था उसको ओपन किया, उसकी सारी ज्वेलरी है उसको दे दी, सेफ की जितनी भी है, और वो वहाँ से हैप्पीली चला गया। अभी देखो स्टूडेंट, देन आफ्टर देयर इज अ क्लाइमैक्स। इसके बाद क्लाइमैक्स है। वो जो लेडी थी, हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि होरेस को अच्छी तरह से ये बात का पता था कि वो जो वहाँ पे ये जो फैमिली है मिसेस ग्रेंज की, वो तो लंदन रहते हैं, तो अचानक से वो यंग लेडी वहाँ कैसे आई। अभी ये बात का वो पता लगाना भूल गया होगा शायद कि मिसेस ग्रेंज जो है शी वॉज ओल्डर और यंग। उसको ये बात का पता नहीं था कि वो जो मिसेस ग्रेंज है वो ओल्डर है, ये यंग है, बिकॉज ही हैड नेवर सीन हिम, ही हैड नेवर सीन देम। उसने होरेस ने वो फैमिली को कभी देखा नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा फैमिली के बारे में जानता नहीं था। तो वो जो लेडी है वो मिसेस ग्रेंज है, ये तो उसने पूछा ही नहीं क्योंकि वो पहले से ही डरा हुआ था। एंड पैरेलली द लेडी वाज वेरी कॉन्फिडेंट। वो जो लेडी थी वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, यानी कि सामने वाले किसी भी पर्सन को ऐसा नहीं लगेगा कि वो लेडी भी चोर है। अभी मैं तुमको बोलती हूँ ये क्लाइमैक्स है, बट वो जो लेडी थी वो भी चोर थी। वो भी वहाँ पे चोरी करने ही आई थी, लाइक होरेस की तरह ही चोरी करने आई थी, बट उसको सेफ कैसे खोलते वो पता नहीं था। वो उसके घर में ही रहती थी, मिसेस ग्रेंज के घर में। सर्वेंट्स डिडंट नो अबाउट दिस, सर्वेंट्स को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। बट वो लेडी को, उसका भी एक कोइंसिडेंस हम लोग बोल सकते हैं, शी इज हैविंग गुड लक बोल सकते हैं, जिसकी वजह से होरेस का वहाँ पे आना होता है। उसको देख के जिस तरह से वो ऐसे बिहेव करती है जैसे एज शी इज द ओनर ऑफ द हाउस, जैसे कि वो घर की मालकिन है, जिसको देख के होरेस को रियली ऐसा लगता है कि शी इज द ओनर ऑफ दैट हाउस, शी इज हरसेल्फ मिसेस ग्रेंज। उसको ऐसा लगता है ये सच में कौन है, मिसेस ग्रेंज है। ओके, बट वो नहीं थी। शी वॉज ऑल्सो द थिप लाइक होरेस, वो भी चोर ही थी। वही हमें देखना है। देखो अभी क्या होता है, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है स्टूडेंट, और वो पिक्चर में तुमको दिखेगा, देखो कि वो जब जेल में, उसको जेल की सज़ा होती है, वो जेल में एज ए लाइब्रेरियन काम करता है प्रिजन के अंदर, और वो सोच रहा है वो लेडी के बारे में। देखो उसके थॉट में, यानी उसकी थिंकिंग में वो लेडी का फेस आता है, क्योंकि बाद में क्या हुआ होगा ऐसे कि उसको अचानक से पता चला होगा ये लेडी वो नहीं है, बराबर कि नहीं। तो ये जो क्लाइमैक्स है वो मैं डिस्कस करती हूँ, 1 मिनट। ओके, तो वी आर ऑन द क्लाइमैक्स। हम लोग क्लाइमैक्स में देखें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसको ही फेल्ट रिग्रेटेड, उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने क्या कर दिया, मैं इतना बड़ा चोर, आई एम 50 years old, वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन इन रॉबिंग, और मुझसे कोई एक छोटी सी लड़की, छोटी मीन्स शी वॉज वेरी यंग, वो यंग लड़की मुझे चीट करके चली गई, उसको ये बात का पछतावा होता है। तो देखते हैं, मैं रीड करती हूँ, देखो। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe, but he never got the chance to begin his plan. फिर 2 दिन तक उसने कुछ किया नहीं, क्योंकि उसने क्यों नहीं किया होगा, उसने वो लेडी को प्रॉमिस किया था। बट तीसरे दिन ही केम द थॉट ऑफ द बुक्स, उसको बुक्स की याद आई। और वो चोरी क्यों करता था, मैंने तुमको पहले ही बताया कि बुक्स को खरीदने के लिए, क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव बुक्स थी, इतने पैसे होरेस के पास कहाँ से थे, बट ही हैज़ अ हॉबी टू रीड दैट बुक्स, वो रीड करता था बुक्स। तो उसने 3rd डे पे उसको ऐसा लगा कि मुझे चोरी करनी चाहिए, मुझे मेरा प्रॉमिस तोड़ना होगा, क्योंकि मुझे तो बुक्स खरीदनी है, और बुक्स खरीदने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बट वो प्लान कैसे करें, प्लानिंग करने के लिए उसके पास इतना टाइम नहीं था। फिर क्या हुआ, देखो। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एंड शूट ओवर ग्रेंज। उसको शूट ओवर का मीनिंग है लूटना, लूटेड। उसने अपना प्लान बनाना स्टार्ट किया। उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, दैट इज वाई ही मेड अ शॉर्ट प्लान। उसने छोटा प्लान बनाया शॉर्ट में, और किसी दूसरे के घर पे रॉबरी करने की सोची। बट एज सुन एज ही वेंट फॉर डूइंग द रॉबरी, पुलिस कॉट हिम। जैसे ही वो वहाँ पे चोरी करने जाता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। उसके ऊपर मीन्स ऐसे इल्ज़ाम लगता है कि क्या है, उसके ऊपर
ऊपर ऐसे द पुलिस अरेस्टेड हिम एज अ ज्वेल रॉबरी एंड शूट ओवर ग्रेंज। मिसेस ग्रेंज के घर पे उसने घर तोड़ा उनका, उनकी ज्वेलरी चोरी की है, ऐसा उसके ऊपर वो जो पुलिस है वो केस करती है, वो केस उसके ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस उसको पकड़ लेती है। His fingerprints for he had opened his safe without gloves were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open his safe for her. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. उसके वो कैसे पकड़ा गया? क्योंकि वो लेडी उसको सिगार देती है, वो सिगार पीने के लिए उसको उसके ग्लव्स निकालने पड़ते हैं हॉरेस के, जिसकी वजह से उसके फिंगरप्रिंट जो है वो पूरे घर में होते हैं। ओके, और क्योंकि उसने बहुत ही आराम से, उसको ऐसा कि शी इज़ द ओनर ऑफ द हाउस, वो घर के ओनर है, तो उसने आराम से वो तिजोरी तोड़ी। जब वो पुलिस के सामने ऐसा बोलता है कि आई ओपन और आई ब्रोक दिस सेफ फॉर द ओनर ऑफ द हाउस, द लेडी हरसेल्फ, कि मैंने वो लेडी के लिए ये जो सेफ है वो तोड़ा हुआ है, बट नो वन बिलीव्स हिम, कोई उसके ऊपर विश्वास करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो लेडी होती है एक्चुअल ओनर ऑफ द हाउस, शी वॉज 60 ईयर्स ऑफ एज, वो 60 ईयर्स ओल्ड है, उसके हेयर्स ग्रे है, ग्रे मीन्स वाइट, उसके पूरे हेयर्स जो है वो वाइट है, बहुत कम बोलने वाली लेडी है, और वो इतना ही बोलती है कि वॉट एवर द हॉरेस इज सेइंग इट इज़ नॉनसेंस, वो बकवास कर रहा है, इसमें एक भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि लेडी जो ओनर है वो तो मैं हूँ। अभी हॉरेस यहाँ पे उसको बिल्कुल धक्का लगता है, क्योंकि उसने जो वहाँ पे लड़की देखी थी, जो लेडी देखी थी, शी वॉज वेरी यंग ब्यूटीफुल, और ये जो लेडी थी वो तो बूढ़ी थी। वो क्वेश्चन उसके माइंड में वही है कि फिर मुझे लूटा किसने। वो पुलिस को बता भी रहा है कि ये मैंने नहीं किया है, कोई दूसरी यहाँ के ओनर के जो ओनर थी मिसेस ग्रेंज, उन्होंने मुझे बोला सेफ तोड़ना, इसलिए मैंने तोड़ा। यहाँ पे वो शॉक तो है, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बोला वो जो लड़की थी शी वॉज ऑल्सो अ थिंग लाइक हिम, वो भी चोरी थी, और उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया, और जिसकी वजह से पूरी की पूरी रॉबरी उसने बहुत ही इजीली कर ली। फिर देखो क्या हुआ। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। He often think of the charming, clever young lady who was in the same profession and he was, who tricked him. He gets very angry when anyone talk about honor among thieves. जब फिर होरेस जो है उसको पुलिस ने सजा दी है। He was in the prison now and he is doing the work of assistant librarian. वो वहाँ पे प्रिजन में वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की काम कर रहा है, बट whenever he was सीटेड देयर, वो जब कुछ भी काम नहीं करता है, एट इज लेजर टाइम वी कैन से, उसको वो यंग लेडी के बारे में वो हमेशा सोचता है। पहले तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है कि मुझे एक लड़की ने चीट किया, वो भी लड़की जो मेरी तरह ही थीफ थी और मुझसे भी कम एक्सपीरियंस और कम उम्र की थी, जिसने मुझे यूँ चीट कर लिया। और जब उसको कोई ऐसे बोलते हुए सुनता था कि ऑनर अमंग द थीव्स, कि वो बहुत ही ईमानदार है, तो उसको वो देख के बहुत ही पछतावा होता था। उसको ऐसा लगता था कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, आई डोंट वॉन्ट दिस ऑनर अमंग द थीव्स, क्योंकि मैं तो वो इंटेंशन से गया था कि मुझे वहाँ पे वो चीज़ें मिले, बट वो यंग लड़की ने मुझे यहाँ पे चीट किया। उसको देख के उसे पछतावा भी बहुत होता था, गुस्सा भी बहुत आता था। रियल स्टूडेंट, तुम लोग खुद सोचो, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, सपोज तुम्हारे बारे में बोलती हूँ, इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, और हमारी जैसे कॉपी करके कोई दूसरा हमसे लिख लेता है, और जब टीचर उसकी बुक में गुड लिखती है और हमारी बुक में नहीं लिखती, हमें कितना बुरा लगता है, इज़न्ट इट? तो सेम जो थिंकिंग है, जो फीलिंग है, सॉरी, वो फीलिंग किसको आ रही थी? होरेस डेनबाई को आ रही थी, क्योंकि उसको भी वो लेडी ने चीट किया था, जिसकी वजह से चोरी तो उसने की, पर सजा कौन भुगत रहा था? होरेस। तो यहाँ पे इसीलिए चैप्टर का टाइटल तुमको पता चला आगे, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कि ट्रस्ट किस पे करें, क्योंकि ही ट्रस्टेड दैट लेडी बट द लेडी चीटेड हिम, इज़न्ट इट? बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। तुम लोगों को यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस दिए हैं 4 क्वेश्चंस है, थिंक अबाउट इट में, क्योंकि तुम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं कि मैम कौन सा लिखे। पहले 4 क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, वो तुमको तुम्हारी नोटबुक के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से लिखने हैं। एज यू आर इन स्टैंडर्ड 10, सो व्हाट यू हैव टू डू, तुम लोगों को दूसरा काम भी करना है। एज सून एज द चैप्टर इज ओवर, ओके, यू हैव टू रीड द चैप्टर वंस। एक बार तो तुमको वो चैप्टर पढ़ना है, ताकि तुमको माइन्यूट चीज़ें पता चलेगी। वैसे तो मैं पढ़ा ही रही हूँ तुम लोगों को, एक भी पैराग्राफ अपने स्किप नहीं कर रहे, पर तो भी एक बार तुमको पढ़ना है,
पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं बेटा। काफ़ी सारे बच्चे हैं, गूगल मीट में जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, डाउट सॉल्विंग लेक्चर होता है, तब बच्चे बिंदास बोलते हैं कि हमने होमवर्क किया नहीं है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम लोग होमवर्क नहीं करोगे तो लॉस इज योर्स, तुम्हारा ही लॉस होने वाला है। सो डोंट डू दैट, डू योर होमवर्क प्रॉपरली। अच्छी तरह से होमवर्क करना है और फिर हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ, न्यू कंटेंट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस।